हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 पी के न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.83 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Then we need to express it in kilogram per meter cube. Only we need to convert the unit from gram per centimeter cube to kilogram per meter cube. What we need to do? You will need to convert gram into kilogram. So how we can? We know 1 kilogram is equal to how much gram? 1000 gram. So 1 gram will be equal to 1 upon 1000 kilogram. Is it clear? Now the second thing we need to do, convert centimeter cube into meter cube. This we have done in previous video also. Here again I am repeating this question. 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meter, that we can write as 10 to the power minus 2 meter. Okay. Now what we will do, we need to convert centimeter cube into meter cube. So we will cube both the sides. So 1 centimeter cube is equal to 10 to the power minus 2 meter cube. Whole cube it is there. So it will be 1 cube centimeter cube is equal to 10 to the power minus 2 into 3, or you can write 10 to the power minus 2 cube meter cube. 1 cube is 1. 1 centimeter cube is equal to 10 to the power minus 6 meter cube. This thing is clear what we are doing here. X to the power m to the power n, so x to the power m into n, so minus 2 into 3 is minus 6. Now we know that 1 gram is equal to how much? 1 upon 1000 kilogram. So what you can write it as 10 to the power minus 3 kilogram. Okay, so what you will write, 8.83 into 10 to the power minus 3 divided by centimeter cube, then it will convert in meter cube, so it will be 10 to the power minus 6, and the unit will be now kilogram per meter cube. So it will be 8.83 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power plus 6, so it is 8.83 into 10 to the power minus 3 plus 6, so it is 8.83 into 10 to the power 3 kilograms per meter cube. So what we are doing here I am only describe you how you can convert it. Only one step you need to do in this question, if you remember the formula. If you remember the formula, so when you convert gram per centimeter cube into kilogram per meter cube, you only need to multiply it with 10 to the power 3. If you multiply, so you will directly write 1 gram per centimeter cube is equal to 10 to the power 3 kilogram per meter cube. You will just write this. Then you will multiply this number with this, and then you can get the answer. This is your answer. Only this thing you need to do, where you will convert 1 kilogram per meter cube is equal to 10 to the power 3 gram per centimeter. This just opposite I did there, so you don't need to get confused. Okay, so this question is completed here. Now we will move forward to question number 2. Let's see what is given in question number 2. So question number 2 is here. So it is given here, the relative density of mercury is 13.6, state its density in Cgs unit and SI unit. So relative density of mercury is given to us, that is 13.6. We need to convert it into Cgs. Sorry, we will find the density in Cgs and SI. So first you need to find out the density, then you can find it in different units. So what is the formula for relative density? Relative density is equal to density of substance upon density of water. Okay. This formula you need to remember, that relative density of any
substance is equal to density of substance divided by density of water. Here we need to find out the density of substance. So what you will do, you will transfer here. So relative density into density of water. When you will find it in CGS unit, so you need to remember that in CGS unit, density of water is 1 gram per centimeter cube. So the density of mercury is equal to relative density 13.6 into density of water is 12. So that is 13.6 grams per centimeter cube. Now we need to find it in SI unit. So you know the density of water in SI unit is equal to 1000 kilogram per meter cube. So you will just put the value and you will get the answer. Okay. So it is 13.6 into 1000. So you can write 13.6 into 10 to the power 3 kilograms per meter cube. Or you can use the formula with the previous question. That what was given in previous question, that when you want to convert 1 gram per centimeter cube into kilogram per meter cube, so what you will do, you will multiply it with 10 to the power 3. So you will multiply this with 10 to the power 3, so you can get the answer in kilogram per meter cube. This is your answer. So here question number 2 is complete. Now we will move forward to question number 3. Okay, let's see what is given in question number 3. All these questions are very simple and same. So question number 3, here it is density of iron is given to you. That is 7.8 into 10 to the power 3 kilograms per meter cube. And what is its relative density? So here we need to find out the relative density. So we know the formula for relative density, density of substance upon density of water. So density of substance, that is given to you 7.8 into 10 to the power 3. And density of water, what you will take, 1 or 1000. So here you can see that is given in kilogram per meter cube. So this also you will take as kilogram per meter cube, that is 1000. So this 2 is cancelled. So relative density of iron is 7.8. Okay. Now we will move forward to question number 4. Let's see what is given in question number 4. Question number 4 हमको दिया है relative density of silver. We need to find out the density. So relative density has 10.8 and we need to find out the density. Same formula you will use. Density of silver is equal to relative density into density of water. So relative density 10.8 into density of water. If you will take in CGS, so 1, so it is 10.8 grams per centimeter cube. If you want to write in kilogram per meter cube, so you will multiply it with 10 to the power 3. So it will be 10.8 into 10 to the power 3 kilograms per meter cube. Only you need to remember that you have to write the correct unit, and here you will write below that the density of water is this. Okay, so here your question 4 is also complete. Very simple question it was. Now we will move forward to next question. Question number 5. So calculate the mass of air in a room of dimension this if its density of air is this. तो हमको फाइंड आउट करना है मास. ठीक है. वॉल्यूम डायमेंशन दिया है, मतलब यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, जो आपको दिया हुआ है 4.45 इंटू 3.5 इंटू 2.5, यही दिया हुआ है ना. तो ये आपका वॉल्यूम मिल जाएगा. तो वॉल्यूम यहाँ से निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 39. ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन 6 हो गया. ठीक है, 5 नंबर इसकी बात करते हैं. तो 4.5 इंटू 3.5 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 39.375 मीटर क्यूब. ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ एयर दिया. तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना हो जाएगा 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. और हमको फाइंड आउट क्या करना है, मास. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम.
डेंसिटी कितनी है 1.3, वॉल्यूम कितना है 39.375, मल्टीप्लाई कर दो आपको मास मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो देन यू कैन गेट योर आंसर। सो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से 51.19 किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है और हमसे फाइंड करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा छोटा सा, पहले 5 देख लेते हैं। 5 दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी if the volume is 2 meter cube and relative density is 0.52। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। और ये आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पिछले क्वेश्चन में हमको डेंसिटी दिया था, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी दिया है, तो इस रिलेटिव डेंसिटी से कभी डेंसिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर किसमें लोगे, क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाला ले लो। तो 0.52 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 10⁻³ तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। इस वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 0.52 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है 2। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 1.04 इंटू 10⁻³ क्या निकाले थे मास। मास की यूनिट क्या होगी किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर 1.04 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 130 ग्राम। पहले जो वैल्यू दी रहती है वो आप लिख लिया है। उसके बाद बोला है sinks to the bottom in water contained in a measuring cylinder and water level in cylinder rises from 30 ml to 40 ml. So initially it was 30 ml, then it changed to 40. ठीक है, कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, ये ग्राम में है तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी देनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो उनको दिया है, वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी चीज़ को जब आप लिक्विड में इमर्स करते हो तो उसमें जो लेवल ऑफ वाटर राइज होता है वो इक्वल जो होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के। तो यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर राइज कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1 करते हैं तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10 ml और 10 ml इज इक्वल टू कितना होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ रखो तो मास है 130/10, तो 113/10 करके कितना आ जाएगा 11.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर नंबर 7। ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, सिर्फ वैल्यू पुट करते जानी है, आंसर आपका खुद ब खुद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, weighs 1 kilogram force in air. So weight is equal to 1 kilogram force. Find its weight in water and its relative density. ठीक, अब आप देखो कि हमको क्या बोला है, बॉडी है जिसका वॉल्यूम दिया है, इसका वेट दिया है, तो क्या आप इसका मास निकाल सकते हैं। मास कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम फोर्स है वेट, तो मास हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आप कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम करके निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो वॉल्यूम तो दिया है, मास हमको मिल गया, तो डेंसिटी निकाल लो। मास कितना है हमारा 1/100, मतलब 1 किलोग्राम फोर्स है और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 1000 ग्राम फोर्स दो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1000 ग्राम। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1000/100 मतलब 10। अब रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये किसमें आया था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया 10। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सेकेंड हमको निकालना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो वो कैसा निकालते थे हम, पिछले वैल्यू में करते थे, पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करते थे 5a में डेंसिटी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता था, v इंटू रो इंटू जी होता था। तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, डेंसिटी कितनी आई 10 इंटू जी। ठीक है, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया हमारा, v की वैल्यू 100, डेंसिटी है 10, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 ग्राम फोर्स। अपथ्रस्ट आ गया हमारा। एक सेकेंड, ओके, डेंसिटी हमारी कितनी आई थी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं लेते हम यहाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो गया। तो ये 100 ग्राम फोर्स हो गया। अब हमको क्या बोला, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कैसा निकलता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर निकलता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है हमारा 1000 माइनस अपथ्रस्ट कितना है 100। तो 1000 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा 900 ग्राम फोर्स। तो ये हो गया आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, जिसको हम इसका एपरेंट वेट भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया है, उस फॉर्मूला से जब आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आता है। ये आपको जब फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, एक हम देखेंगे, फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो W1 क्या हो जाता है आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन W1, और W2 क्या होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी आई है आपकी 10 इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे हम सीरीज में लिए हैं तो 1, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1000 माइनस W2 इज इक्वल टू 1000, तो 1000 सॉरी ये 100 है ना, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस W2 इधर जाके प्लस W2, तो W2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 100 900 ग्राम फोर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। दोनों में देखो आंसर सेम आ रहा है। तो जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से फॉर्मूला से रख के बना रहे हो, बस आपकी यूनिट्स वगैरह सही होने चाहिए, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 5B के 8 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।